ناول خالی گھر، رائٹر رخسانہ نگار عدنان۔ کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ تو خیر اپنے معمول کے وقت یعنی فجر کے وقت بھی کھلی تھی، مگر شیطان نے کچھ ایسے دل برانہ انداز میں تھپکیاں دی کہ پھر کہاں کی نماز کہاں کی جاگنگ۔ لگتا ہے پھر اس شریفہ نے کچھ توڑ دیا ہے۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے گردن ذرا سی گھما کر وال کلاک کی طرف دیکھا، 10 بج چکے تھے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آجاؤ، کون ہے؟ میں ذرا سا اٹھتے ہوئے بولا۔ سلام صاحب، میں فرزند۔ اس نے پہلے اپنے خرگوش جیسے لمبے دودھیا دانتوں سمیت منہ دروازے کے دراز سے اندر سے داخل کیا اور پھر خود اندر آ گیا، اور مجھے اس کے انداز سے فوراً پتہ چل گیا کہ فرزند صاحب کیوں تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھے نہیں صاحب، بس کھیکھی کرنے کی کسر تھی، ورنہ اس کے دانتوں کی نمائش سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ ابھی کہا مار کر ہنس پڑے گا۔ اڑ گئے فرزند صاحب؟ حکم؟ میں باقاعدہ ٹانگیں لٹکا کر سلیپ پر اڑسنے لگا۔ توبہ میری اللہ توبہ، جو آپ کو حکم دوں۔ بس ایک عرض ہے حضور۔ وہ لہجے میں کچھ عاجزی بھرتے ہوئے 2 قدم مزید آگے بڑھا، اور مجھے اس کی عرض کے بارے میں بھی علم تھا۔ ہاں بولو، میں نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سستی سے کہا۔ حضور، یہ بدبخت شریفاں حضور گھر کی دشمن ہے پوری۔ کچن کے برتن اور دوسری چیزیں کچھ بھی اس نامراد کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں، لے کر قیمتی سب سے مہنگے والے ڈنر سیٹ کی بڑی پلیٹ، ایک نہیں حضور 2 توڑ ڈالی۔ حضور، کیا اول درجے کی چینی تھی، اور کیا زبردست ڈیزائن، اور جو سیٹ برباد ہوا وہ علیحدہ۔ حضور، بڈھی کھوسٹ کو کچھ نظر نہ آوے، اس کی تنخواہ سے پلیٹوں کے پیسے کاٹیں اور فارغ کریں اس سردرد کو۔ فرزند میرے ڈھیلے ڈھالے انداز اور یکسو ہو کر سننے سے شہ پا کر بولتا چلا گیا۔ دیکھو فرزند، ہمارے مذہب میں ہے کہ ٹوٹنے والی چیزوں کا غم نہ کرو، ہماری طرح ان کی بھی عمر مقرر ہے، اور پر صاحب ہر روز ہر وقت جب گھر میں دھنا دھن ہوتی رہے تو کیا تب بھی شکوہ نہ کریں؟ چیزیں ساتھ رہیں یا انسان، جی الفت تو ہو ہی جاتی ہے، ان کا جانا تھوڑا صحیح، غم تکلیف تو دیتا ہے۔ صحیح کہا فرزند تم نے، اور تم نے خود ہی جواب بھی دے دیا کہ چیزیں ہوں یا انسان ساتھ رہیں الفت تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب بیچاری شریفہ کو ادھر کام کرتے 1.5 سال ہونے کو آیا، اب اسے باہر جا کر ایک دم سے نوکری سے جواب دے دوں؟ پھر میں نے بڑی چالاکی سے ساری گوٹ فرزند کے کھانے میں ڈال دی۔ وہ کچھ لاجواب سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ وہ تو صحیح بات ہے صاحب، پر آپ اس کا کچھ سوچو۔ اچھا بھئی کچھ کرتے ہیں، تم ناشتہ لگواؤ، میں بات لے کر آتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ میں نے اٹھتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ میں فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ جہازی سائز ڈائننگ ٹیبل کے ایک حصے میں ناشتے میں دنیا جہان کی چیزیں موجود تھیں، باقی ٹیبل ویران تھی۔ کرسی سنبھال کر بیٹھتے بیٹھتے ہی میرا جی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ فرزند نے گرم گرم سلائس اور پھولا ہوا 2 اقسام کا آملیٹ میرے آگے رکھا۔ صاحب پراٹھا لیں گے ساتھ؟ اس نے اپنے مخصوص محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا اس لمحے میرا دل کس چیز کو چاہ رہا ہے؟ خواہ مخواہی آنکھوں کے گوشے نم سے ہو گئے۔ پہلے آپ جوس لے لیں، میں چائے بعد میں لاؤں گا۔ وہ مستعدی سے اورنج جوس میرے گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولا، اور میں خالی نظروں سے تیزی سے بھرتے گلاس کو دیکھتا رہا۔ کیا کسی بھی چیز کو بھرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ جس تیزی سے یہ گلاس بھر گیا، میں نے لبالب بھرے اورنج جوس کے گلاس کو دیکھ کر رشک سے سوچا، نہیں، جگہیں چیزوں سے مختلف ہوتی ہیں، انہیں اتنی جلدی نہیں بھرا جا سکتا۔ فقط انسانوں سے بھرنا ہو تو کچھ مشکل نہیں، مگر محبت سے بھرنا شاید ناممکن۔ میں نے خود ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے لیے میز پر موجود ہر چیز بے ذائقہ بے رنگ ہو چکی تھی۔ یہ وہی لذت کام و دہن کا سامان تھا جس کے ایک ایک نوالے پانے کے لیے خدائی خوار ہوتی پھر رہی ہے۔ میں نے ناشتے کے لوازمات کو دیکھتے ہوئے سوچا، دور کیوں جائیے، کبھی میں بھی۔ میرے اندر کوئی ہولے سے ہنسا۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے شاندار پر آسائش لگژری ڈائننگ ہال کو دیکھا، اور یہ سجا سجایا کمرہ مجھے ایک دم سے خالی لگا، بالکل خالی، ویران اجڑا ہوا۔ ایسی زوراور کیفیت تھی جس نے میرے پورے کے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے وحشت سے اپنا سر ہاتھوں میں لے کر زور سے جھٹکا۔ ہاں، جس گھر میں محبت نہ ہو وہ گھر خالی ہی ہوا کرتے ہیں، ویرانوں کی طرح وہاں اداسی اور وحشتوں کے آسے بسیرا کرنے لگتے ہیں۔ مجھے اپنے اندر سے ہی جواب بھی مل گیا تھا کہ مجھے یہ گھر خالی کیوں لگنے لگا ہے۔ صاحب پراٹھا گرما گرم،
فرزند نے بھاپ اڑاتا خوشبودار پراٹھا میرے سامنے رکھ دیا۔ صاحب کچھ لے کیوں نہیں رہے؟ اسے یکدم میری میز کے اسی طرح بھرے ہونے کا احساس ہوا۔ فرزند دل نہیں جا رہا، طبیعت بوجھل سی ہو رہی ہے۔ تم بس مجھے ایک کپ چائے بنا کر ادھر دے دو۔ میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر اٹھ گیا۔ 12-13 سال کی عمر کے لڑکے نے اسٹیل کے گلاس میں ٹھنڈا پانی بھر کر میرے سامنے رکھا اور مڑ کر جانے لگا۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے بے اختیار سا ہو کر اسے پکارا تھا۔ ناصر جی، اس نے مختصراً کہا۔ تم پڑھتے نہیں ہو؟ اس نے یوں میری طرف دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ سارا دن ادھر ڈیوٹی دیتا ہوں اور رات کو گھر جاتا ہوں۔ اس نے کچھ بے چین سی نظروں سے آوازیں دیتے ہوٹل کے مالک کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ نشہ، اس نے پھر مختصراً کہا، اور میرے اگلے سوال سے بیشتر ہی وہاں سے چل دیا۔ یقیناً اس کے 2-4 اور بہن بھائی ہوں گے، ماں ہوگی، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، اور سب سے بڑھ کر پیٹ کے ایندھن کا انتظام۔ یا خدا، ان سب غریبوں کی کہانیاں ایک سی کیوں ہوتی ہیں؟ روٹی سے شروع ہو کر روٹی پر ختم ہونے والی، میں نے بے بسی سے سوچا اور یخ پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ لڑکا پھرتی سے ہال میں بچھی میزوں کے درمیان گرم گرم روٹیاں سرو کرتا پھر رہا تھا۔ اگر فرزند مجھے یہاں اس پسماندہ علاقے کے ہوٹل میں بیٹھے نان چنے کے ساتھ اسٹیل کے اس پرانے سے گلاس میں پانی پیتا دیکھ لے تو یقیناً بے ہوش ہو جائے۔ میں کھانا کھانے کے بعد بھی بہت دیر وہاں بیٹھا رہا اور یوں ہی بے مقصد اس نو عمر لڑکے کو بڑی مستعدی اور ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے دیکھتا رہا۔ بیچ میں 1-2 بار وہ میری میز پر بھی آیا، مزید کچھ منگوانے کا پوچھنے کے لیے۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے اس کے آنے کو غنیمت سمجھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے اجرت میں جواب دیا اور دوسری طرف مڑ گیا۔ ان سب محنت کش نوعمر لڑکوں کی صورتوں میں اپنا چہرہ بڑا واضح دکھائی دیتا تھا۔ محض چند سال بیشتر میں بھی تو ان کی طرح اپنے کمزور وجود پر محنت کی ڈھال تانے خود کو زندگی سے منوانے کے لیے کیسی تگدوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ دور بیت گیا تھا مگر چپکے سے کہیں اندر ہی چھپ کر بیٹھ گیا تھا، اور جب بھی اس طرح کے لڑکے مجھے دکھائی دیتے وہ مشقت بھرا وقت مجسم ہو کر میرے سامنے آ جاتا۔ ان میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے کہ انہیں کولہو کے بیل کی طرح اسی دائرے میں آنکھوں پر مشقت کی پٹی باندھے گھومتے ہوئے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو صرف اپنے کنبے کو 2 وقت کی روٹی بہم پہنچانے تک کی اہمیت کا احساس، جبکہ مجھے اس مشقت اور محنت کے ساتھ چمٹی ذلت بھرے احساس سے چھٹکارا پانے کی لگن بھی تھی۔ کبھی پڑھنے کو دل چاہے یا کسی باعزت نوکری کو تو اس پتے پر چلے آنا۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے اسے ایک ہینڈسم ٹپ اور اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، اور یہ میری عادت تھی اس طرح کے کسی بھی لڑکے کو دیکھ کر اسے یہ آفر کرنا، اور ایسی آفرز کے جواب میں عموماً جتنے بھی لڑکے بعد میں مجھ سے رابطہ کرتے وہ صرف موٹی سی مالی مدد کے چکر میں رابطہ کرتے، اور جب میں ان سے پڑھنے اور شام کو کوئی پارٹ ٹائم جاب کے لیے کہتا تو وہ دوبارہ میرے پاس آنے کی کم ہی زحمت کیا کرتے تھے، سوائے 3-4 کے۔ ہاں، یہ 3-4 لڑکے نعمان، وحید، آصف اور جاوید میری تمام زندگی کا حاصل تھے۔ آج وہ میری حوصلہ افزائی اور مناسب مالی مدد کے ذریعے پڑھ بھی رہے تھے اور اپنے گھر والوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ جب میں ان چاروں سے ملتا ہوں تو مجھے ان میں اپنا چہرہ بہت روشن، بہت پر امید نظر آتا ہے۔ سپہر کی دھوپ اب پیلی پڑتی ہوئی سرمئی شام میں بدل رہی تھی جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ شاید وہ لڑکا کل مجھ سے ملنے آئے اور میری بات سمجھ کر آمادہ ہو جائے اور میری کامیابی کا فگر 5 ہو جائے۔ مجھے اگلی آس بھری صبح کا شدت سے انتظار تھا، اور صبح جس وحشت کے عالم میں گھر سے نکلا تھا اس کی کیفیت میرے دماغ سے یکسر محو ہو چکی تھی۔ اگلی صبح بے حد تازہ دم اور روشن تھی۔ کل جس طرح میرا دل بوجھل اور وحشت زدہ ہو رہا تھا، آج اس بات کا نشان بھی نہیں تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں حسب معمول جاگنگ کے لیے گیا، ناشتہ بھی اپنی روٹین کے مطابق کیا۔ فرزند اور شریفہ کے درمیان ہونے والے نئے تنازع کو اخبار دیکھتے ہوئے غائب دماغی سے سنتا رہا، اور چائے کا خالی کپ لے کر حشاش بشاش سا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج میری تازگی کا واحد سبب مصروفیت تھا۔ صاحب، ایک بات بولوں؟ فرزند میرا بریف کیس پکڑے گاڑی تک آیا تھا۔ کہو، میں بیٹھنے سے قبل شیشے کو تھام کر بولا۔ صاحب، آپ شادی کر لیں، مکمل فیملی، گھر، پھر آپ کو گھر بہت اچھا لگنے لگے گا۔
उसने ब्रीफकेस अंदर रखते हुए जरा डरे हुए अंदाज में कहा और मेरे चेहरे के तासुरात देखे बगैर वापस मुड़ गया। क्या फरजंद को भी पता चल गया है? ये सामान से भरा पूरा घर मुझे खालिया सेबजदा वीराना लगने लगा है। मैं फरजंद के अंदाजे पर हैरान सा था। शादी, फैमिली, घर, कितने मुतजाद अल्फाज हैं और इन तीनों की मेरे साथ मैचिंग। कितनी नामुमकिन सी बात है। शादी का मतलब औरत का साथ, औरत की मोहब्बत और औरत। मेरा हलक कड़वा हो गया। मैं औरत ज़ात से ख़ाइफ़ नहीं कि मुझे जन्म देने वाली एक औरत ही थी और दुनिया में मेरी पसंदीदा हस्ती, जिसके जाने के बाद उसका खला आज तक मेरे अंदर से पुर नहीं हो सका। मगर मुझे ज़िंदगी की ज़िल्लतों से रूशनास कराने वाली भी तो एक औरत ही थी। ऐसी औरत जिसने मुझे इस सिन्फ से ही नफ़रत करने पर मजबूर कर डाला था। मैं तल्ख़ी से सोच रहा था। मैंने एक तन्हा ज़िंदगी गुजारी थी, बेहद तन्हा। सिर्फ़ मैं और मेरी मेहनत और बस। कोई दोस्त, कोई अज़ीज़, कोई हमराज़ और सबसे बढ़कर कोई खैरख्वाह भी तो नहीं, सिवाय इस फर्जंद के। मैंने सर झटक कर इन लायानी सोचों से पीछा छुड़ाया और खिड़की से बाहर भागती दौड़ती जिंदगी को दिलचस्पी से देखने लगा। अपने चैम्बर की तरफ जाते हुए जैदी साहब के कैबिन के सामने आ गया। मेरे स्याह बूटों के पास धानी रंग का आंचल कैबिन के कोने से निकलता हुआ पंखे की हवा से फड़फड़ा रहा था। मैं लम्हा भर को ठठक सा गया और जरा खनकार कर आगे हुआ। गुड मॉर्निंग सर। जैदी साहब बेसाख्ता अपनी सीट से उठते हुए बोले तो दूसरी चेयर जिसकी दरवाजे की तरफ पुश्त थी उस पर बैठी लड़की भी हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। धानी आंचल उसी के कंधों से ढलक कर कैबिन से निकला जा रहा था। गुड मॉर्निंग सर। उसकी महीन सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मुनासिब कद की आम से खदोखाल वाली लड़की थी जिसका रंग बहुत साफ था और जिस्म छरीरा, कुछ झिम्पी झिम्पी सी खड़ी थी। ज़ैदी साहब, आप प्लीज़ ज़रा मेरे ऑफिस में आइए, एके बिल्डर्स की फ़ाइल लेकर। मैंने लड़की पर सरसरी सी नज़र डाली और ज़ैदी साहब से कहकर बाहर निकल आया। ये लड़की कोई न्यू अपॉइंटमेंट है आपके ऑफिस में? ज़ैदी साहब फ़ाइल लेकर जाने लगे तो मैंने यूं ही सरसरी से लहजे में पूछा। जी सर, आपको याद नहीं, पिछले दिनों हमने कंप्यूटर सेक्शन की एक खाली सीट के लिए ऐड दिया था। आप इंटरव्यू वाले दिन मीटिंग में थे। ओके ठीक है, आप जाएं। मैंने जैदी साहब के तफसीली जवाब पर कहा और अपने आगे रखी फाइल खोलकर देखने लगा। उस आम सी लड़की में कुछ खास बात थी क्या? फाइल को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ते हुए भी मुझे बार बार यही बात तंग करती थी। आखिर क्या खास बात हो सकती है इतने आम से चेहरे पर? मैंने झल्लाकर फाइल बंद करते हुए खुद से कहा। वही स्याह गहरी आंखें, वही गंदमी से जरा साफ रंगत, मुनासिब नाक, कदरे भरे हुए होंठ, नाक नाक के ऐन दरमियान में वो स्याह तिल। मैं उसे सोचते हुए यकदम चौंका। हाँ, यही बात थी वो, शायद जिसने उस आम से चेहरे को खास बना रखा है। उस नाक के तिल ने उसके अच्छे खासे चाइनीज नाक को अनोखी सी उठान दे रखी थी। देखने वाली नजर उसकी चिपटी नाक पर ठहरने की बजाय सीधी उस स्याह तिल पर जा रुकती थी। शायद यही वजह हो। मैंने मुतमईन सा होकर फिर से फाइल खोल ली, मगर मेरे अंदर अभी भी कोई पिन सी गड़ी थी। मेरा चौंकना महज उस तिल ही वजह से नहीं था, तो फिर किस सबब से था? तमाम दिन ऑफिस में मुख्तलिफ कामों के दौरान मसरूफियत में भी ये सवाल मेरे अंदर सर उठाता रहा, जिसे मैं सर झटक कर भुलाने की कोशिश करता रहा और बिलाखिर कामयाब भी हो गया। मगर रात को जब सोने के लिए लेटा तो छम से वो स्याह तिल वाली नाक और आम सी सूरत वाली लड़की मेरे सामने आ खड़ी हुई। क्या मुसीबत है? मैंने झंझलाकर करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह उठते ही पहला ख्याल मुझे यही आया था। छोड़ो यार, क्या बात करते हो? तुम तो हो ना छड़े छांट, जब जहां मुंह उठाया चल दिए। हमसे पूछो, घर से अंदर बाहर आने जाने के लिए भी बेगम पूरी इंक्वायरी टीम की तरह जिरा करती हैं। तुम अच्छे हो, तुम्हें देखता हूं तो रश्क आता है। एहसन मेरे अच्छे कारोबारी दोस्तों में से था। आजकल उनकी कंपनी के साथ भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था और पिछली मीटिंग प्लस डिनर में वो आ नहीं सका था। आज उससे फ़ोन पर बात हुई तो मैंने कह डाला, तो वो तो जैसे भरा बैठा था। और तो मैं जो आज सुबह से ही फर्जंद के मशवरे पर मुसलसल काम की मसरूफियत के दौरान भी गौर करता रहा, एकदम से पीछे हटने लगा। क्या शादी ऐसी पाबंद कर देने वाली चीज़ है? मैं लम्हा भर बाद यूं ही पूछ बैठा। ऐसी वैसी? अलबत्ता तुम कर लो। वो बेधड़क बोला। क्यों, मैं क्यों कर लूं? 2 बार तुम्हारे घर डिनर पर इनवाइट था तो मेरी बेगम को मुसलसल ये शक रहा। चूंकि तुम कुंवारे हो तो यकीनन ऐसी वैसी सरगर्मियों में मुलविस होगे, सो मुझे भी खराब करोगे। ला हौला वला कुव्वत। मैंने झंझला कर फ़ोन बंद कर दिया। जी, आयशा नाम है मेरा।
वो किसी काम से अंदर आई तो मेरे पूछने पर बताने लगी। पहली बार जॉब कर रही हैं? मैंने पंखे की हवा से बिखरते पेपर्स को पेपर क्लिप लगाते हुए सरसरी लहजे में पूछा। नहीं जी, इससे पहले 2 जगह की है। वो साफ गोई से बोली। कहाँ? एक वहाबसंज में सिर्फ 3 दिन और 20 रोड में 2 हफ्ते। मैं खफीफ सा मुस्कुरा दिया। उसकी नाक के बीचों बीच वो स्याह तिल कैसा रोशन था। फिर वही ख्याल मुझे चुभने लगा। मैं उसे देख रहा था बेख्याली में। वो कुछ नर्वस होकर अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। ठीक है, आप जाएं, मैंने कहकर रुख फेर लिया। सर, सर इफ़ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं? वो वहीं खड़ी थी और कुछ अकलाते हुए डरे सहमे अंदाज में बोली। बोलिए। वो शायद मेरी इतनी संजीदा हो जाने वाली सूरत से खाइफ हुई थी। सर, आपका मेरा मतलब है, आपका नाम सर हारून है? आपका पूरा नाम, आपकी फैमिली? व्हाट? मुझे जैसे उसकी आखिरी बात पर जबरदस्त झटका लगा था। मेरी धाड़ से ही वो फुट भर उछल गई थी। व्हाट डू यू मीन? मैं अब बाकायदा उसे घूर रहा था। नथिंग सर, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वो जल्दी जल्दी माजरत करती वहां से चली गई। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उनसे 2 बातें करो तो फैलने लगती हैं। यानी इनको मेरा फैमिली डाटा चाहिए ताकि ये आगे तक सोच सकें। यानी कि मेरा दिमाग जैसे खोल रहा था। हालांकि शक्ल से वो ऐसी लड़की नहीं लगती थी, पर शक्लों का जितना धोखा मुझे हो चुका था, अब तो मैंने शक्लों पर एतबार करना ही खत्म कर दिया था। मगर अगले दिन 2 ऐसे वाकयात ऊपर तले हुए जिससे मुझे लगा, या तो वो लड़की बहुत घाघ और शातिर है, या हद दर्जा बेवकूफ़। ड्राइवर सुबह मुझे ऑफिस लेकर आया और पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके मेरा ब्रीफकेस हाथ में लिए मेरे आगे जा रहा था। मैं अपने सेल पर आने वाली मिस्ड कॉल चेक कर रहा था जब वो अचानक खुले गेट से अंदर आते हुए मेरे पास रुकी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सर, आप ऊपर जा रहे हैं ना ऑफिस? उसने पीछे से आकर एक तो इतना अचानक सलाम और गुड मॉर्निंग इकट्ठे कहा। फिर अगला सवाल। जाहिर है मैं ऑफिस ही जा रहा था। मैंने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके उसे देखा। वो कम से कम ऑफिस आने के लिए शायद तैयार होकर नहीं आई थी। कास्मी कलर था शायद वो, कि मुझे रंगों की कुछ ऐसी पहचान नहीं, या फिर शायद गहरा गुलाबी, मगर शिकन आलूद, और उसके बालों की बिखरी लिटें पीछे लगे क्लिप या फिर कैचर से निकल निकल कर चेहरे के अतराफ में पड़ी थी। लगता था उसने मुंह भी नहीं धोया था। मैंने नागवारी से उससे देखा। सर, आप प्लीज़ ये मेरी एप्लीकेशन प्लीज़ जैदी साहब को दे दें। मैं अपनी अम्मी को अस्पताल लेकर जा रही हूँ। वो बाहर रिक्शे में हैं, प्लीज़। उसने मेरे जवाब का मज़ीद इंतज़ार किए बगैर उजलत में कहा और हाथ में पकड़ा कागज़ ज़बरदस्ती मेरे हाथ में देकर तकरीबन दौड़ती हुई बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में हाथ में पकड़े कागज़ को देखा। अहमक लड़की। मैं उसका पियून लगा हूँ जो उसकी छुट्टी की दरख्वास्तें जमा कराता फिरूँ। जाने मुझे क्यों इतना गुस्सा आया। मैंने बेख्तियार वो कागज़ पढ़े बगैर 2 टुकड़े करके रास्ते में उछाल दिया। अभी मुलाजमत पर आए 2 दिन नहीं हुए और बॉस को उसने चपरासी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। इन जैसी लड़कियां जॉब भी महज हॉबी के तौर पर करती हैं। आज जैदी साहब से बात करता हूँ। लिफ्ट में खड़े खड़े मैंने आयशा को जॉब से फारिग कर देने का पुख्ता फैसला कर लिया। मगर ऑफिस में 10 और बखेड़े मेरे मुंतजर थे और इतनी मसरूफियत में मैं अक्सर भूल गया कि मुझे जैदी साहब से बात करनी है। बल्कि उन्होंने काम के दौरान एक बार आयशा के ना आने का जिक्र करते हुए कुछ तशवीश का इजहार किया। ये आपने किस किस्म की लड़की को अपॉइंट किया है? मुझे उसकी बात पर अपना गुस्सा याद आ गया। बहुत ज़रूरतमंद है सर, अगरचा तालीम और तजुर्बा दोनों कम थे। मगर जैदी साहब बात करते करते रुके। और सर, एक बात और। जी कहिए, मैंने बेजारी से कहा। वो गफ़ार साहब है ना, एडमंड में, उन्हें आज सुबह हार्ट अटैक हो गया। आज अगर आप मुझे थोड़ा जल्दी जाने की इजाज़त दें तो मैं घर जाने से पहले उनकी इयादत करता जाऊं। गफ़ार साहब मेरे स्टाफ के बहुत ईमानदार और मेहनती शख्स थे। मुझे उनके हार्ट अटैक का सुनकर तकलीफ हुई। जैदी साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैंने ज़रा तवक्कुफ से कहा तो जैदी साहब का चेहरा खिल सा गया। ये एक दरमियाने दर्जे का अस्पताल था जहाँ सफाई का निज़ाम भी नाकस था और स्टाफ भी खासा गैर जिम्मेदार। गफ़ार साहब की हालत अब कदरे बेहतर थी, मगर अभी भी वह इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में थे और कमरे की हालत देखकर कहीं से नहीं लगता था कि ये आईसीयू है। मैं थोड़ी देर बैठकर फूलों का बुके और सफ़ेद लिफाफे में कुछ रकम गफ़ार साहब के सरहाने रख कर निकल आया। जैदी साहब अभी वहीं बैठे थे। मैं अस्पताल की हालत देखता बाहर की तरफ जा रहा था जब अचानक बरामदे के मोड़ पर मुझे आयशा मिल गई। उसके हाथ में नुस्खा था, शायद वो दवाइयाँ लेने जा रही थी। मुझे देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई। तो वाकई उसकी वालदा बीमार हैं। मैंने अस्पताल में उसकी मौजूदगी पर कुछ हमदर्दी से सोचा।
सर आप यहाँ? वो घबरा कर बोली। हाँ, वो हमारे एक स्टाफ मेंबर इधर एडमिट थे, उनकी अयादत को आया था। आपकी मदर यहाँ एडमिट हैं? यस सर, मैं उन्हें देख सकता हूँ? उनकी खैरियत पूछने के लिए। नहीं सर, वो मेरा मतलब है, अभी वो होश में नहीं। वो एकदम घबरा गई। क्या हालत ज़्यादा ख़राब है? नो सर, ठीक हैं, सो रही हैं। वो फ़ौरन से पेशतर बयान बदल कर बोली। मगर अभी तो आप कह रही थीं वो बेहोश हैं। नो सर, पहले थीं, अब तो बेहतर है, मगर सो रही हैं। वो साफ मुझे टरका रही थी। ओके, फिर मैं चलता हूँ। आप उनको मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, और अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। मैं कहकर जाने लगा। सर प्लीज़, वो मेरे सामने आते हुए बोली। आपने शायद माइंड किया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर वो सो रही हैं तो उन्हें आराम करने दें, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? मैं खिलाफ तबीयत बुरा माने बगैर बोला। शायद उसके अस्पताल में मौजूदगी ने मेरे दिल को नरम कर दिया था। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने। वो उस दिन की तरह कुछ बेचैन सी होकर बोली। जी पूछिए। मैं हमातन गोश होकर बोला। शायद आप बुरा मान जाएंगे। वो बुड़बुड़ाई। ओके सर, फिर बात करेंगे। मैं ज़रा ये मेडिसिन ले आऊँ, अम्मी अकेली हैं उधर। वो एकदम माजरत करके आगे बढ़ गई, और मैं उसके अजीबो-गरीब रवैये के बारे में सोचता रह गया। वो मुझसे क्या पूछना चाह रही थी? फिर उसने अपनी अम्मी से भी मुझे मिलने नहीं दिया। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। या तो ये लड़की कोई साइकी प्रॉब्लम है उसके साथ, या फिर कोई चक्कर। क्या चक्कर हो सकता है? मैं खुद ही सवाल उठाता और खुद ही नफी करता। जैदी साहब, मिस आयशा आई हैं अगले दिन? मैंने जैदी साहब से पूछा। नो सर, उनके मदर अस्पताल में एडमिट हैं इसलिए। अच्छा, उसी अस्पताल में सर जहां गफ़ार साहब एडमिट हैं। मैं कल आयशा के मदर को भी देखने गया था। बेचारी खासी बीमार हैं, और आयशा, उसकी तो हालत देखी नहीं जाती। सभी कुछ उसे ही तो देखना पड़ता है। उसकी मदर बेटी की तरफ से बहुत फिक्रमंद हो रही थी। काफ़ी देर मुझसे उसके मुतल्लिक बातें करती रहीं। जैदी साहब मुतासफ लहजे में कह रहे थे, और मेरी कुछ अजीब सी हालत हो रही थी। उसने कल जैदी साहब को अपनी मदर से मिलवा दिया, और मैंने कहा तो साफ टाल गई कि वो सो रही हैं। कल आप किस वक्त गए थे उनसे मिलने? मैंने दिल की खोलन दबाकर नॉर्मल लहजे में पूछा। उसी वक्त आपके गफ्फार साहब के पास से उठ आने के 10-12 मिनट बाद। मैं भी उठ गया था। बाहर निकलते ही मुझे आयशा मिल गई। मेडिसिन लेकर आ रही थी स्टोर से। मैंने कहा आपकी मदर की अयादत कर लूं, तो बेचारी बहुत शुक्रगुजार हो रही थी। जैदी साहब फाइलें उठाकर खड़े हो गए। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? ये सवाल रात तक मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बजता रहा। अगला पूरा हफ्ता वो ऑफिस नहीं आई। 8वें रोज वो ऑफिस में मौजूद थी। मेरे पास उस वक़्त एहसन बैठा था जब वो 11 बजे के करीब कुछ पेपर्स पर मेरे साइन लेने के लिए आई। वो पहले की निस्बत मुझे खासी कमज़ोर और बुझी-बुझी सी लगी। ब्राउन या ग्रे बुझे हुए रंग की शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक दुपट्टा उसके चेहरे की सोगवारी को और भी बढ़ा रहा था। मेकअप से बिल्कुल बेनियाज साफ रंगत वाला सादा सा चेहरा, और उसकी नाक के बीचों बीच बड़ी शान से चमकता हुआ स्याह तिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वो मुझे सलाम कर चुकी थी। साइन करते हुए मैंने सुना था। अब वो दूसरा सलाम एहसन को कर रही थी। कैसी हैं मिस आयशा आप? वो भी खुशदिली से बोला। फाइन सर। इधर एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वो पूछ रहा था। नो सर, उसका अंदाज जान छुड़ाने वाला था। वो मुझसे पेपर लेकर जल्दी से बाहर निकल गई। तुम जानते हो इसे? उसके बाहर जाते ही मैंने एहसन से पूछा। अरे ये यहाँ जॉब करने से पहले साल भर शुजा अंकल के ऑफिस में रही है। अच्छा खासा सेट थी और अच्छा सैलरी पैकेज भी ले रही थी। फिर जाने क्यों बगैर किसी वजह के उधर रिजाइन करके इधर आ गई। वो कह रहा था और मैं कुछ हैरान सा सुन रहा था। और अब मुझे समझ में आ गया कि ये अंकल शुजा का ऑफिस बगैर किसी वजह के क्यों छोड़कर आ गई। वो मुतमईन से अंदाज में बोला। क्या मतलब? क्यों? मैं कतन न समझ सका। देखो ना यार, कहाँ वो अंकल शुजा जैसा बुढ़ा खुसट एकदम चिड़चिड़े और सड़ियल मिजाज का बॉस, और कहाँ तुम जैसा यंग स्मार्ट हैंडसम गुड लुकिंग और सबसे बढ़कर बिल्कुल फारगुल बाल बॉस। अब बोलो, तुम्हारा पैकेज ज्यादा अट्रैक्टिव है या बेचारे शुजा अंकल का? वो जताने वाले अंदाज में कह रहा था। शट अप यार, क्या फजूल हाँक रहे हो? मैं खज्जल सा होकर यही कह सका। अरे बड़ी घाघ होती हैं ये आजकल की लड़कियां। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक बॉस से दूसरे बॉस तक का सफर बड़ी सहूलत और बेहतर से बेहतर पैकेज के चक्कर में बड़े आराम से कर लेती हैं। वो घटियापन से कह रहा था। मेरी सोच ऐसी कभी भी नहीं रही थी। लगता है आज तुम्हारा काम का मूड नहीं। मुझे ज़रा एक काम से जाना है। फारिग हो तो चलो, बाकी भड़ास रास्ते में निकाल लेना। मुझे सर शुजा ही से एक ज़रूरी काम याद आ गया। सो उठते हुए बोला तो वो भी उठ खड़ा हुआ, और अगली शाम मुझे लगा उसकी सारी पेशन गोइयाँ
हुर्फ बहुर्फ सच साबित हो गई हैं। साहब आपसे कोई मिलने आया है। मैं लैपटॉप खोले मसरूफ था जब फरजंद ने आकर मुझे इत्तला दी। कौन है? इस वक्त ऐसे मौसम में कौन आ गया? मैं सुस्ती से उठते हुए बोला। बाहर मौसम के तेवर अच्छे नहीं थे। दोपहर भर में इकट्ठे होने वाले बादल अब शाम के घटाएं बन चुके थे, जो किसी भी लम्हे बरस सकती थी। ड्राइंग रूम में बिठाया है जी, चाय ले आऊं? वो मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके दांत निकालते हुए बोला। हाँ ले आओ। मैं सर हिलाता ड्राइंग रूम में आ गया और सामने कमरे के बीचों बीच दूधिया रोशनी में खड़ी आयशा को देखकर मैं लम्हा भर को साकत सा हो गया। आप यहाँ? मेरी हैरत में नागवारी का अंसर गायब था। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? वो सब्ज़ रंग के लिबास में थी और ये रंग उसकी साफ रंगत पर खूब खिल रहा था, मगर उसके बावजूद मुझे कतन अच्छी नहीं लगी। कुछ हसन की बातें दिमाग में गर्दिश करने लगी। ऐसी लड़कियों का सफ़र, बेहतर से बेहतर बॉस, बेहतर से बेहतरीन पैकेज की तरफ कितनी सहूलत से तय होता है। मैं बदिक्कत अपनी नागवारी पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा। कोई ज़रूरी काम था? आपको तो सुबह वर्किंग डे ही था। मैंने साफ जताते हुए कहा कि मुझे उसका यूं घर तक चले आना अच्छा नहीं लगा। सॉरी सर, मगर काम मुझे पर्सनल नोयत का था। वो अभी तक खड़ी थी और मेरे रवैये से कदरे नर्वस भी हो रही थी। मैंने भी उसे बैठने को नहीं कहा। अब मुझे फरजंद के ख्वामखा नकोसते दांतों की वजह समझ में आ गई। जी कहिए, मैं रुखाई से बोला। बाहर लम्हा बलम्हा मौसम के तेवर बदल रहे थे। बादल गरजने लगे थे। सर, मेरी वालदा बहुत बीमार हैं। उसकी आवाज़ में नमी सी थी। ओह, मैं समझ गया, उसे माली मदद की ज़रूरत थी। ये बात उस रोज़ आप मुझे अस्पताल में भी बता सकती थी, या ऑफिस में। जैदी साहब से कह देती इस तरह के कामों के लिए अलग से अकाउंट मौजूद है। वो मेरी बात सुनकर तेज़ी से पलकें झपकने लगी। उसके हाथों की उंगलियां शायद कँपकपा रही थी, जो वो उन्हें बार बार मरोड़ रही थी। नो सर, ये बात नहीं है, वो भारी आवाज़ में बोली। तो क्या बात है, साफ कहिए। ड्राइंग रूम में दूधिया रोशनी थी जो मरकरी फानूस से छिन छिन कर आ रही थी, मगर बाहर अंधेरा लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था। सर, मेरी मदर, डॉक्टर्स कहते हैं वो शायद चंद हफ्ते या चंद दिन, उन्हें कैंसर है और आखिरी स्टेज पर। वो बेदर्दी से होंठ काटती, आंसू पीती, बड़े हौसले से कह रही थी। एक पल को मुझे अपने रवैये पर बेहद नदामत हुई। उनके पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने लम्हा भर को भीगी पलकें उठाईं। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और पानियों से लबालब थीं, और मुझे आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आपसे मिलना चाहती हैं। उसने रुक रुक कर बात मुकम्मल की थी। मुझसे? मगर क्यों? मैं हैरत से बोला। ये आप उनसे मिलेंगे तो जान जाएंगे। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। उसी वक्त फरजंद चाय के साथ लवाजमात की ट्रॉली धकेलता अंदर ले आया। वो खामोशी से फरजंद के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। मगर मैं उनसे क्यों मिलूं? उस रोज़ मैंने खुद आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी इयादत कर लूं, तो आपने साफ मुझे टाल दिया था। और बाद में जैदी साहब। मैं मुनाफिक कभी नहीं रहा था, सो दिल में बातें रख कर उनको कीना नहीं बनाता था, इसलिए साफ गोई से कह डाला। आप उनसे मिलेंगे तो मेरे टालने की वजह भी जान जाएंगे। ये मेरे घर का एड्रेस है। कल शाम में आपका इंतज़ार करूंगी। उसने छोटी सी चिट मेरे आगे की, जिसे मैंने पढ़े बगैर मुट्ठी में बंद कर लिया। बस इतना याद रखिएगा सर, मेरी माँ के पास वक्त कम है और आपसे मिले बगैर वो इस दुनिया से जाना नहीं चाहती। ये कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गई। मैं कितनी देर हैरान और साकित खड़ा रह गया। बाहर जोर से बादल गरजे तो मुझे ख्याल आया, बाहर मौसम कितना खौफनाक हो रहा है, और वो अजीब सी लड़की ऐसे मौसम में अकेली कहाँ जाएगी। मैं तेजी से बाहर की तरफ लपका। साहब, बाहर तो वो कहीं भी नहीं है। फरजंद थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला। तेज हवाओं के साथ मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो चुकी थी। याद आया वो रिक्शे में आई थी, और उनके अंदर आने पर वो रिक्शा बाहर ही खड़ा रहा था। उसमें गई होंगी। फरजंद जाते जाते वापस पलटकर बताने लगा। ये मौसम और इस तरह की लम्हा बलम्हा तेज होती बारिश मुझे हमेशा होशो खिर से बेगाना कर दिया करती थी। हर बार ये मौसम मुझे उस जालिम रात की याद दिला देता था, जब तकदीर की तरह ये मौसम भी मेरा दुश्मन बन चुका था। बरसों पहले की उस रात का एक एक मंजर अपनी पूरी जुज़ियात के साथ मुझे याद आता चला गया। मुझे इलाका ढूंढने में तो कोई ख़ास दुश्वारी ना हुई, मगर घर ढूंढने में बहुत वक्त लगा। घर क्या था? शायद एक कमरे पर मुश्तमिल था, जिसके आगे छोटा सा बरामदा और दूसरी तरफ शायद बाथरूम था। दस्तक देने से पहले मैं काफ़ी देर वहां खड़ा रहा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मैंने अभी दस्तक देने के लिए दरवाजे पर हाथ ही रखा था कि दरवाज़ा फौरन खुल गया। वो कल वाले लिबास में अपना रोशन चेहरा और नाक पर चमकता तिल लिए खड़ी थी। आइए प्लीज़। उसने सलाम करते हुए मुझे रास्ता दिया।
यकीनन घर ढूंढने में आपको खासी दुश्वारी हुई होगी। वो मेरे साथ चलते हुए आहिस्तगी से बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चौथे कदम पर कमरे का दरवाज़ा था जिस पर मामूली जाली का सफ़ेद पर्दा लहरा रहा था। सर, एक मिनट। वो दरवाजे से 2 कदम पर ही रुक कर बोली। सर, आपसे एक इल्तिजा है। जी कहिए। मैं अब उसकी बातों से काफ़ी मुतजस्सिस हो चुका था और जल्द अज जल्द इस सस्पेंस से जान छुड़ाना चाहता था। सर, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कोई इंसान ख्वाह कितना ही ताकतवर और बाइख्तियार क्यों ना हो, कुदरत ने उसे एक मुकर्ररा टाइम लिमिट दे रखा होता है कि उसकी ताकत और इख्तियार की हद उस टाइम तक है। उस मुकर्ररा टाइम लिमिट के गुजरते ही कुदरत उससे सारी ताकत, सारा इख्तियार छीन कर उसे बेबस और लाचार बना देती है। और अगर उसने अपने टाइम लिमिट में ताकत और इख्तियार के घमंड में लोगों के हकूक़ का पामाल किया होगा, तो फिर उसकी बेबसी और लाचारी बहुत काबिल रहम होगी। मैं उसकी बात सुन तो रहा था मगर समझ कम ही रहा था। जाने वो किस हवाले के पस मंज़र में बात कर रही थी। सर, सिर्फ इतना याद रखिएगा, मेरी माँ के पास थोड़े से दिन हैं। वो भी उसने कुदरत से रो रो कर मांगे हैं, सिर्फ आपसे माफ़ी मांगने के लिए कि उसकी ताकत टाइम लिमिट गुजरते ही उसे बेहद काबिल रहम बना चुकी है। प्लीज़। वो अपनी आंखें साफ करते हुए आगे बढ़ गई। उसने अंदर जाकर कमरे की लाइट जलाई और मुझे अंदर बुलाने लगी। अम्मी, उठिए। देखिए कौन आया है आपसे मिलने। हारून जावेद। हारून भाई आए हैं। कमरे में बिछे अकलौते बेड पर हरकत सी हुई और आयशा के आखिरी जुमले ने किसी बिच्छू के डंक की तरह मुझे काटा था। मैंने सामने बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठी उस औरत को देखा जो किसी भी जिंदा वजूद का महज साया ही लग रही थी। इतनी कमजोर और मदकूक के बगौर देखने पर भी मालूम पड़ती थी। इसके बावजूद मैं उसे पहली नज़र में पहचान चुका था। वो थी जिसने मुझे औरत जात से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। मैं हारून जावेद, अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। अब्बा मेरे बचपन में ही, जब मैं 3-4 साल का था, एक रोड एक्सीडेंट में दुनिया से गुजर गए। मेरे जहन में उनकी हल्की सी शबिया भी नहीं। हाँ, जिसको मैंने अब्बा कहा और अब्बा समझा, और उस नाम के साथ जिसका तस्वुर मेरे दिमाग पर उभरता था, वो मेरे बाप का सगा भाई, मेरा चचा हाशिम था। हाशिम चचा ने अब्बा के बाद मुझे यूं अपनी मोहब्बत भरी छाँव में समेटा कि मैं एक अरसे तक लोगों के बता देने के बावजूद उन्हें ही अब्बा समझता रहा। और माँ ने भी मुझे यही समझाया, यही बताया कि हारून, यही तुम्हारे अब्बा हैं, हमेशा इनको अपने बाप का सा रुतबा और इज्जत देना। शायद मेरी माँ को इल्म था कि उसने इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाना है, इसलिए बार बार ये नसीहत मेरे कानों में उतारती रहती थी। चचा अब्बा के घर हमें कोई तकलीफ नहीं थी। माँ लोगों के कपड़े सीकर मकदूर भर चचा अब्बा की मदद कर दिया करती थी। उस घर में हमारे लिए मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ था, मगर इस एहसास के साथ दिन रात कचौके देने वाला एक धीमा धीमा सा ज़िल्लत भरा एहसास भी था। वो थी चची अम्मी की नफ़रत। उन्हें मुझसे, मेरी माँ से बेतहाशा नफ़रत थी। हम उनकी बिला शिरकत गैर हुकूमत में हिस्सा बटोरने जो चले आए थे, वो भी बगैर दावत के। अब्बा की वफ़ात से पहले हम साथ वाले घर में रहते थे। अब्बा की वफ़ात के बाद चचा अब्बा ने बीच की दीवार गिराकर दोनों घरों को एक कर दिया था। बस यहीं से चची की नफ़रत का दौर शुरू हो गया। वो बरमला कहती थी कि इस 2 टके के छोकरे का वजूद कल को उनके बच्चों का हक गसब करने का बाइस बनेगा। चचा अब्बा के 2 बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटे माँ का परतू थे, गुसीले और बदमिजाज, जबकि आयशा चचा अब्बा के मजाज और शक्ल की जीती जागती फोटोकॉपी थी, सिवाय उसकी नाक का वो जरा सा तिल, जिसे मैं, देखो अशु, चूहा तुम्हारी नाक पर पोटी कर गया है, कहकर छिड़ा करता था, जिस पर वो पहले लड़ती फिर घंटों रोया करती थी। और हर बार माँ मुझे खूब डांटा करती। और मुझे याद है, माँ अक्सर चचाबा से कहा करती थी, भाई ये अशु तो मेरी बेटी है, मेरी अमानत है आपके पास, चंद सालों के लिए और चचाबा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर जोर से सर हिला दिया करते थे। उस वक़्त मैं ना अमानत का मफ़हूम समझता था, ना माँ की बातों का, पर शायद माँ को भी इल्म था उसकी ज़िंदगी थोड़ी है। सो वो 2-4 दिनों बाद चचा अब्बा को ये वाली बात याद दिलाना ना भूलती, और ऐसे में चची अम्मी किचन में बर्तन उठा उठा कर फेंकती, बच्चों को बिला वजह मारने लगती, कोसने लगती, और माँ कुछ शर्मिंदा, कुछ खौफजदा से मंज़र से हट जाती। उन दिनों मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, ना चची अम्मी से, ना उनके गुस्से से। मेरे आगे मेरी माँ की मजबूत ढाल जो थी। तुमने खूब पढ़ना है हारून, तुम्हारे अब्बा का ख्वाब था कि वो तुम्हें बहुत पढ़ाएंगे, मगर ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत ही ना दी। माँ अक्सर, जब मैं अक्सर पढ़ रहा होता, मेरे पास आकर बैठ जाती और हसरत भरे अंदाज में मुझसे कहती, मुझे खुद भी पढ़ने का शौक था और ज़हन भी बहुत अच्छा था। मैं दूसरी जमात में था
जब एक रात अचानक माँ छत से सूखे कपड़े उतारने गई। मौसम खराब हो रहा था। सब घर वाले सोने के लिए लेट चुके थे और कपड़ों के ढेर के पीछे से माँ सही तौर पर कदम न रख सकी और 8 दिनों से यूं लुढ़कती हुई नीचे आई कि उसके मुंह से एक आखिरी जोरदार चीख निकली। वो सारे कपड़ों का ढेर उस पर पड़ा था और सर के नीचे से खून की नहर सी निकली चली आ रही थी। अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आई। माँ ने आखिरी 2-3 सांसें ली और मुझे हैरत से देखते हुए हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। वो रात, वो स्याह गरजती बरसती रात, फिर अगले 18 सालों के लिए मेरी जिंदगी में ठहर गई। चचा अब्बा की शफकत मुझ पर कुछ और भी बढ़ गई, मगर चची अम्मी की नफरत, उनके गुस्से में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला गया। मैं सिर्फ उस वक्त अमान में होता था जब चचा अब्बा घर में होते थे। उनके घर से बाहर जाते ही मैं चची अम्मी और उनके दोनों सर चढ़े बेटों के अताब का निशाना बन जाता। सिर्फ वो छोटी सी अशु थी मेरी माँ की चचा अब्बा के पास अमानत, जो ऐसे अताब की घड़ी में मेरे आगे कमजोर सी ढाल बनने की कोशिश करती और अक्सर चची अम्मी के 2-3 हाथ भी खा जाया करती थी। ये घर मेरे बेटों का है। ये छुटका अभी छोटा है। तुम अभी से अपने बच्चों के नाम कर दो, कल को कोई आफत खड़ी कर देगा। चची अम्मी चचा अब्बा से कह रही थी। कुलसूम बीबी, ये घर हारून और हमारे बच्चों की मुश्तरका मलकियत है। चचा अब्बा तहम्मुल से बोले और चची अम्मी गुस्से में बोलती चली गई। माँ बाप मर गए और गठरी हमारे सर धर गए। हमने क्या यहाँ यतीम खाना खोल रखा है? पालो, फिर पढ़ाओ लिखाओ और कल को जायदाद का हिस्सेदार भी बनाओ। मैं कहती हूँ आज अभी ये फैसला कर दिया, ये इस घर में रहेगा या मैं और मेरे बच्चे। चची शदीद गुस्से में थी। ये रहेगा इस घर में और मेरे बच्चे भी। तुम्हारा जो दिल करता है कर लो, चचाबा ने उन्हें चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। तो चची कितनी देर गुस्से की शिद्दत से बोल ही न सकी। तो फिर हाशिम तुम लिख लो, इस घर में सिर्फ मैं और मेरे बच्चे रहेंगे। ये नहीं रहेगा, मैं अपने बच्चों के हिस्से का उसे एक लुकमा तो क्या 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगी। उन्होंने बड़े दबंग लहजे में चचाबा का चैलेंज कबूल किया था और फिर उन्होंने सच कर दिखाया। उस दिन से मेरा उस घर में रिस्क सुकड़ते सुकड़ते बासी टुकड़ों पर आ गया। वो भी आयशा छुपाकर मुझे दे दिया करती, वरना चच्ची तो शायद मुझे जहर भी देना ना पसंद करती। चचाबा शहर से बाहर गए हुए थे, उन्हें अगले रोज आना था। कैसी तूफानी रात थी, जैसे इस तूफान में सब कुछ उड़ा ले जाएगी। मुझसे एक मामूली सा शीशे का ग्लास टूट गया और चच्ची को एक ठोस बहाना मिल गया। चच्ची ने यासिर और वसीम ने मिलकर मुझे इतना मारा कि मेरे मुंह और सर से लहू रिसने लगा। निकल यहाँ से, जान छोड़ हमारी। मैं तुझे एक पल के लिए इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती। तू यहाँ रहेगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का रिस्क तेरे पेट का दोजख बढ़ता रहेगा। मेरे बच्चों के हिस्से की मोहब्बत उनका बाप सारी तुझ पर लुटाता रहेगा और कल को इस सांप को पाल पोस कर इस घर का मुख्तार कुल बना देगा। मैं इस संपोलिया का सर अभी क्यों ना कुचल दूं। निकल निकल यहाँ से। उनके हाथ में जलती लकड़ी थी और मेरा कमजोर वजूद, वसीम और यासर के ठुड्डे और ऊपर गरजता बरसता आसमान। अम्मी अम्मी ना मारो इसे। अम्मी भाई प्लीज अब्बा को आने दो। हारून भाई को ना मारो। वो पागलों की तरह कभी माँ से लिपट कर उसके हाथ थामने की कोशिश करती और कभी दोनों भाइयों के साथ, और वो हर बार उसे धक्का देकर पीछे कर देते। चची अम्मी मैं कहाँ जाऊँगा? बाहर बारिश है और सर्दी भी। प्लीज़ मुझे रात, बस एक रात रहने दे, मैं सुबह चला जाऊँगा। चचा अब्बा के आने से पहले। अल्लाह के लिए मुझे मत मारो। एक 9 साला बच्चे की कमज़ोर फरियाद आखिरी ज़रब मेरे सर में लगी और मैंने जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत मरने के लिए बारिश के तूफान में छलांग लगा दी और अंधाधुंध इस अंधेरी सड़क पर दौड़ता चला गया और दिल में कसम खाई कि इधर अब कभी नहीं आऊँगा। उस रात मुझे कोई रहमत का फरिश्ता किसी बड़ी गाड़ी का मालिक नहीं टकराया था, बल्कि एक मफलूकुल हाल गुदड़ी पोश फकीर था जो मुझे अपने साथ लगाकर अपनी टपकती बहती छोटी सी कुटिया में ले गया था, जहां उसने मुझसे बिन पूछे मेरे जख्मों पर मरहम रखा, दूध का गर्म प्याला दिया और मेरे आंसू पोंछकर मुझे लिटा दिया। मैं सिसकियों से रोता रहा और वो मेरा सर थपक रहा था। सब आजमाइशें हैं, सब इम्तहान। जो समझ गया वो पार लग गया, जिसने जी का रोग बना लिया वो डूब गया। सो जा 2 घड़ी को, सब भूल कर सो जा। वो मुझे थपकते हुए कहे जा रहा था और मैं जरा देर बाद चोटों से उठने वाली टीसों से बेखबर सो चुका था। 2 रास्ते हैं तेरी जिंदगी में, मट्टी और सोना। मट्टी में मिलकर मट्टी बन जा या मट्टी को सोना बना दे। उसने अगली सुबह मुझे चाय के साथ रूखी रोटी देते हुए कहना शुरू किया। सिर्फ जिस्मो जान का रिश्ता कायम रखना है तो ये कासा पड़ा है, पकड़ और मेरे साथ चल। शहर में भिखारी बहुत, पर देने वाले भी बेशुमार हैं। तुझे भी तेरे हिस्से की भीख मिल जाएगी। नहीं तो दूसरा रास्ता, शहर में जगह जगह जेब कुतरों और डाके डालने वालों की तरबियत गाहें हैं। वहां ले चलता हूँ तुझे, चंद दिनों में हुनरमंद कर देंगे। तीसरा रास्ता,
वो रुक कर अपनी मैली सी खिचड़ी नुमा सीने तक झाड़ियों की मानंद बिखरी दाढ़ी में खुजाते हुए बोला, तीसरा रास्ता लंबा तवील तरीन और बहुत सब्र आजमा, जिसके इख्तिताम पर इज्जत ही इज्जत, रिस्क ही रिस्क, कि शहर भर के भिखारियों में बांटे और कमी ना आए। मेहनत का रास्ता, सब्र और जानफिशानी का रास्ता, ईमानदारी और जफाकशी का रास्ता, इल्म और अमल का रास्ता। उम्र तेरी छोटी है, पर शऊर तेरा बलोगत की ड्योढ़ी पर खड़ा है, कि मेरा रब साईं जिनको बिन माँ बाप का बनाता है, उनके अंदर अजब तरह की रोशनी भर देता है। ऐसी रोशनी जो हर अंधेरे रास्ते को उजाल सकती है। चाहे तो आजमा कर देख ले। लोग यतीमों मस्कीनों को हकीर जानते हैं, धक्के देते हैं, रजील जानते हैं, और ज़रा सी देर के लिए ये नहीं सोचते वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला हमें किस मकसद के लिए यतीम बनाता है। चुने हुए होते हैं ये सब यतीम मस्कीन, मेरे मौला की ख़ास मोहब्बत से चुने हुए। ये ऐसी काबिल नफ़रत धुतकारने वाली मखलूक होते तो क्या वो अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पैदा करता? हरगिज़ नहीं। बात सिर्फ समझ की है, बुराई किसी में भी नहीं, सिर्फ इंतखाब का हौसला गड़बड़ मचाता है। वो उठकर खड़ा हो गया। ये दूसरा कासा छोड़े जा रहा हूँ। दिल चाहे तो पहला रास्ता इख्तियार कर लेना, बगैर हाथ पांव हिलाए, सिर्फ इज्जत नफ्स को कत्ल करके, 2 वक्त का रिस्क। दूसरा रास्ता अपनाना चाहे तो शाम तक मेरा यहाँ इंतज़ार करियो। वो रुका। और अगर तूने तीसरा रास्ता इख्तियार किया तो? उसने मुसाफे के लिए मेरे सामने अपना मैला कुचैला भद्दा स्याह हाथ बढ़ाया। तेरी मेरी ये आखिरी मुलाकात है, चलता हूँ। वो अपनी रंग बिरंगी बदबूदार गुदड़ी संभालते हुए बाहर निकल गया। वो मेरी इस गुदड़ी पोश से पहली और आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि मैंने तीसरा रास्ता अपनाया था। एक लंबा तवील तरीन सब्र आजमा मुशक्क़तों से भरा सेल्फ मेड मैन का रास्ता, और आज मैं वो कुछ हूँ। वो हड्डियों का पिंजर उस रात की शक्ल कलब औरत चची अम्मी थी। वो मुझसे कुछ भी कहे बगैर अपने इस्तख्वानी हाथ मेरे आगे बांधे बस ज़ारों कतार रोए जा रही थी। और मुझ पर बहुत पहले ये मुनकशिफ हो चुका था कि ऐसा लम्हा मेरी ज़िंदगी में आएगा, और मैं पहले से तय कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मुझे कम अज़ कम इस औरत को मुआफ़ नहीं करना, हरगिज़ नहीं। मैं अपने पहले से सोचे हुए फ़ैसले के तहत झटके से उठा और बाहर जाने लगा। हारून, हारून भाई, सर। वो उस रात की तरह मेरे पीछे रूहानसी होकर लपकी थी, और मेरा पहले से सोचा हुआ फ़ैसला जैसे रेत की दीवार बन गया और मेरे कदमों में बिछता चला गया। सिर्फ एक लम्हा, जैसे दुआ की कबूलियत का एक लम्हा होता है, इसी तरह इंसानों के कवी तरीन फ़ैसलों को बदल जाने के लिए भी सिर्फ एक लम्हा चाहिए होता है। और मेरा कवी तरीन फ़ैसला उस साहर लम्हे में बदल चुका था। मैं मुड़ा और उसे देखने लगा। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, और लब कुछ बोलने के लिए फड़फड़ा रहे थे। मैं गाड़ी दरवाजे पे लेकर आ रहा हूँ, तुम चची अम्मी को बाहर तक लेकर आओ। इन्हें अभी मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और फिर अस्पताल। ये मैं बोला था या मेरे अंदर से कोई और? बोल चुकने के बाद भी मैं कितनी देर बेयकीनी किसी हालत में खड़ा रहा। शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वो खूबसूरत शायद नहीं बल्कि यकीनन तेज गुलाबी रंग के सूट में हम रंग लिपस्टिक लगाए बड़े इस्तेहकाक भरे अंदाज में मुझसे कह रही थी, आयशा मेरी जिंदगी में क्या आई, मुझे रंगों की पहचान भी हो गई। आप कहती हैं तो मैं जाता ही नहीं। मैं रोमांटिक अंदाज में उसकी तरफ खिसकते हुए बोला। उसने हंसते हुए मुझे परे धकेला। बस ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं। वो मेरे साथ पोर्च तक आई और गाड़ी में बैठकर मैंने उसे हाथ हिलाया, और वो गेट बंद होने तक वहीं खड़ी मुझे मोहब्बत पाश नजरों से देख देख कर मुस्कुराती रही। मेरा घर ही नहीं, मेरा दिल भी मोहब्बतों से लबालब भर गया था। दिल को शादा करने से, मुआफ कर देने से, मोहब्बतों से दिलों को तस्खीर कर लेने से वीरान आसेब ज़दा घर कैसे आबाद हो जाते हैं। यासर और वसीम ने वो घर जिसके लिए चची अम्मी ने बरसों पहले मुझे धक्के देकर निकाला था, उन्होंने बाहर जाने के लिए उस घर को बेच डाला। चचा अब्बा उस गम से जब बिस्तर से लगे तो उठ ना सके। अब्बा हर रोज सुबह उठते और दुकान पर जाने से पहले, घर आने से पहले 2-3 घंटे आपकी तलाश में सारे शहर में फिरा करते थे, और अपनी मौत के आखिरी लम्हात में उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपको तलाश करके एक बार उनके लिए और अम्मी के लिए ज़रूर मुआफ़ी मांग लूँ। अश्शो बेटी, इस दुनिया की मुआफ़ी आसान, उस दुनिया में मुआफ़ी नामुमकिन। वो पहरों रोया करते थे। उनके आंसुओं ने मेरे दिल में ज़ख्म बना दिए थे। और सर शुजा के पास जॉब के दौरान ही मैंने आपको उनके ऑफिस में देखा। मुझे शक गुजरा, और मुकम्मल नाम जानने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। इसीलिए सर शुजा की जॉब छोड़कर मैंने आपका ऑफिस ज्वाइन किया, मगर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। किस तरह से अपनी माँ के गुनाह की माफ़ी मांगती, और मैं जो दिल में सोचता था कि कभी इस औरत को मुआफ़ नहीं करूँगा।
ایک لمحے کے آگے ہار گیا تھا۔ رہا سہا ماں کے کال نے مجھے پسپا کر ڈالا کہ ہاشم بھائی، اشو میری امانت ہے آپ کے پاس۔ صرف ایک معافی کے بدلے مجھے کتنے فائدے ملے تھے، لیکن صرف نظر لگ جانے کے ڈر سے ان فائدوں کو نہیں گنتا۔ مجھے خدا نے اس لمبے طویل صبر آزما راستے کے انتخاب پر کیسا خوبصورت انعام دیا تھا۔ پھر میری طاقت، میرا اختیار بھی تو ایک ٹائم تک میرا تھا، اور اگر میں اس ٹائم لمٹ میں خدا کے بندوں کے حقوق پہچاننے کی بجائے پامال کرنا شروع کر دیتا، تو پھر اس ٹائم لمٹ کے گزر جانے کے بعد یقیناً میری بے بسی اور لاچاری قابل رحم ہونا تھی، اور یہ سراسر نقصان کا سودا تھا۔ ایک معافی کے عوض میں نے کیسے نفع کا سودا کیا۔ آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں نا؟ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔